हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था अबाउट द एक्सटर्नल ईयर एंड इट इंक्लूडिंग दैट एक्सटर्नल, दैट मीन्स pinna, which is also called as the auricle. And you know the function of that pinna or the auricle, it is to collect the sound waves from the different directions. And then that pinna opens by means of that funnel-like aperture, which is called as a concha, and continue as a external auditory canal or the external auditory meatus, जिसको मैंने एक और भी नाम बताया था, that is the tympanic bulla, okay, which is internally lined by means of a that hairy cells, fine hairs are there, okay, and along with that large quantity of the ceruminous glands which secrete the earwax, nothing but the cerumen. और इसका हमने फंक्शन भी स्टडी किया था. एंड नाउ सच कॉन्सेंट्रेटेड साउंड वेव्स विच केम फ्रॉम दी विच मीडियम, इट इज एयर मीडियम. ध्यान में रखना है, अभी मैंने मीडियम की बात की क्योंकि इसका अभी रेफरेंस आगे आएगा. तो अल्टीमेटली ऑल दी साउंड वेव्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम दी एयर मीडियम नाउ ट्रेवल्स थ्रू दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड देन बम्बार्ड ऑन दी दैट flap diaphragm which separates the external ear from the middle ear, which is tightly stretched, okay, and it is lined by means of a such cuboidal epithelium. It is external lined by means of a cuboidal epithelium. उसका external जो surface होगा वो cuboidal epithelium से बना हुआ है, okay. साथ में ultimately it containing the large quantity of the fibrous connective tissue. अगर इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हम देखते हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑल थ्री बेसिक जर्म लेयर्स, नथिंग बट द एक्टोडम, मेसोडम एज वेल एज द एंडोडम. इन तीनों बेसिक जर्म लेयर के ओरिजिनेट हुई है ए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन which is also called as the eardrum. And now here the collected sound waves with a great intensity now bombard on that eardrum or nothing but the tympanum, which is also called as the tympanic membrane, जिसको हम बोलते हैं कान का पर्दा. And it vibrated, okay. तो अभी ऐसा वाइब्रेशन जो कलेक्ट किया गया एज अ इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, वो कहां पर बम्बार्ड हो गया? ऑन दैट टिम्पेनम, ओके. Now in this way, such epidermal lining वाला कनेक्ट टिश्यू वाला क्यूबोइडल एपिथेलियम से कवर किया गया स्ट्रेच टिम्पेनम, ये मेम्ब्रेनस फ्लैप है, डायफ्राम है जो एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है, ओके. नाउ हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज अबाउट द मिडल ईयर. मिडल ईयर. Now here, this middle ear actually is formed by means of a large oval cavity, and now this cavity is again bounded by means of a the temporal bone. Again, it is a bony cavity, temporal bone, and containing the series of three different bones, and with a large cavity. And now such cavity of this middle ear, which is called as the tympanic cavity. Tympanic cavity, ध्यान में रखना है. अगेन विच इज फिल्ड बाय मींस ऑफ एयर, ओके. तो अल्टीमेटली एयर ये कहां पर है? आउटसाइड द टिम्पेनम, ऑल्सो इनसाइड द टिम्पेनम. ध्यान में रखना है, ओके. अगर यहां पर टिम्पेनम है, फॉर एग्जाम्पल, अल्टीमेटली साउंड वेव्स बम्बार्डेड and came from that external ear, and then continuation, that is nothing but the middle ear. यहाँ पर अभी ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या टिम्पेनम, that is eardrum, प्रॉपरली वाइब्रेट तभी हो पाएगा जब दोनों तरफ एयर प्रेशर दोनों तरफ कैसा होगा? बैलेंस एयर प्रेशर होगा. एंड नाउ दैट बैलेंस एयर प्रेशर on either side of that tympanum, it is actually maintained every time, okay. लेकिन ऐसे कुछ अनयूजुअल समय हो सकता है जहां पर एयर प्रेशर चेंज होगा, ओके. उस समय इसको कौन मेंटेन करेगा?
It is for a proper vibration of that tympanum that air pressure is always maintained on either side of that tympanum. Okay, that means in the external ear, that means auditory meters, as well as in the tympanic cavity, that balanced air pressure is maintained. Okay, ये balanced air pressure maintain किया जाता है और ये हरदम मेंटेन रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में ये चेंज हो सकता है। उस समय क्या होगा हम देखते हैं। नाउ सच टिम्पेनिक कैविटी अगेन गेट कनेक्टेड विद दी और फेरिंग्स, हमारे फेरिंग्स से कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ए इलोंगेटेड ट्यूब, एंड सच इलोंगेटेड ट्यूब विच कनेक्टिंग द टिम्पेनिक कैविटी विद द फेरिंग्स। अभी हम फेरिंग्स की अगर बात करते हैं तो इसको हम जैसे माउथ कैविटी और बकल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में, गले में, उस रीजन को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, इट इज अ ओरल एपर्चर, नथिंग बट द माउथ एपर्चर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज द ओरोफेरिंग्स। उसके बाद नजल साइनसेस भी ओपन हो गए फेरिंग्स में, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द नजोफेरिंग्स व्हिच इज क्वाइट बिहाइंड द ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के पीछे। ओके, अभी इस नजोफेरिंग्स में एक्चुअली एक इलोंगेटेड ट्यूब ओपन होगी जो इसको किससे कनेक्ट करती है, टिम्पेनिक कैविटी गेट कनेक्टेड विद द फेरेंजियल रीजन, एंड नाउ सच ट्यूब इज कॉल्ड एज द यूस्टेचियन ट्यूब और द यूस्टेचियन कैनल which is also called as the pharyngotympanic canal or the eustachian canal or the pharyngotympanic canal. ध्यान देना बच्चों properly, it is now quite complicated. Okay, now here so tympanic cavity get connected with the pharyngotympanic canal, sorry, it is get connected with the nasopharynx by means of that eustachian canal which is also called as the pharyngotympanic canal, and generally usually it is always closed, it is to maintain the air pressure, हरदम एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऑन आइदर साइड ऑफ दैट ईयर ड्रम, एक्सटर्नल एज वेल एज द मिडल ईयर, दोनों तरफ, फॉर द प्रॉपर वाइब्रेशन ऑफ द सच टिम्पेनम। ओके, नाउ हियर, लेकिन ये ओपन कब होती है, कब ओपन होती है? नाउ दैट यूस्टेचियन ट्यूब जनरली ओपन्स ड्यूरिंग द च्यूइंग, अगर हम चबा रहे हैं, चबाते समय च्युइंगम चबा रहे हैं उस समय ओपन होगी। अगर हम कुछ सलो करते हैं, ओके, सलोइंग के समय या अल्टीमेटली अगर हम पानी भी पीते हैं, गुड़ पीते हैं पानी का, उस समय ओपन हो जाएगी। याउनिंग उसको बोलते हैं, उबासी देना हिंदी में, जाम्बई देने, याउनिंग, या छींक आना, स्नीजिंग, या खांसी आना, कफिंग, उस समय ये यूस्टेचियन कैनल ओपन होती है, उस समय ही ओपन होगी। यूजुअली इट इज क्लोज। साथ में अभी हम जनरली एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम बहुत ऊपर चले गए, हायर एल्टीट्यूड या डेप्थ में चले गए, यानी एल्टीट्यूड चेंज हो गया, उस समय सराउंडिंग एयर प्रेशर चेंज होता है। ओके, उस समय सराउंडिंग एयर प्रेशर चेंज होता है, तो हमारे कान दुखना चालू हो जाते हैं। या जो लोग हवाई सफर करते हैं, हवाई सफर करते समय जब अल्टीमेटली फ्लाइट हायर एल्टीट्यूड पर होगी, कुछ डिस्टेंस पर होगी, उस समय फिर हमको सुनाई देना कम हो जाता है। ओके, उस समय क्या बोला जाता है? च्युइंगम चबाओ, या थोड़ा पानी का घूंट पी लो, या अपना ही सलाइवा स्लो करो, ताकि जैसे ही यूस्टेचियन ट्यूब होगी तो दोनों तरफ का प्रेशर मेंटेन होगा, एयर प्रेशर मेंटेन होगा। ओके, इस तरीके से इस टिम्पेनम का काम कौन सा है? कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स एंड फॉरवर्डिंग दैट साउंड वेव्स इन द प्रॉपर वाइब्रेशंस टुवर्ड्स द इंटरनल ईयर, एंड इट इज डन बाय मींस ऑफ these three small size series of bones which are called as the ear ossicles। उनको क्या बोला जाता है? ear ossicles। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी? एक्स्ट्रा ईयर, दैट इज अ पिन्ना, ऑडिटरी मीटर्स एंड देन द टिम्पेनम। और तीनों का अगर हमने फंक्शंस भी स्टडी कर लिया, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कंसंट्रेशन ऑफ साउंड वेव्स, bombarding and receiving that sound waves by the tympanum, okay, and then the tympanic cavity of the middle ear which get connected with the nasopharynx through the eustachian canal which is also called as the pharyngotympanic canal,
हम जनरली एक्सपीरियंस करते हैं, अगर कोई ईयर ड्रॉप अगर हमने डाल दिया कान में, तो थोड़ी देर के बाद हमको कड़वाहट महसूस होती है गले में। इसका मतलब क्या है? वो ईयर ड्रॉप, कुछ केमिकल, वो कहां तक उतर गए? अभी गले में यानी फेरिंग्स में उतर गए। ओके, इसका मतलब क्या है? मिडल ईयर गेट कनेक्टेड विद दी फेरिंग्स थ्रू दिस यूस्टेचियन कैनाल। ओके, नाउ इन दिस वे, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दी मिडल ईयर पोर्शन, मैक्सिमली हियर, मिडल ईयर पर हम फोकस कर रहे हैं। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ओके कि इन मिडल ईयर का काम है, यहां पर जो सीरीज ऑफ बोन्स का काम है, दे एम्प्लीफाइड दी साउंड यूज बाय मींस ऑफ 22 टाइम्स एम्प्लीफाई कर देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं साउंड यूज की। ऐसा करने की क्या जरूरत है? और स्टार्ट करते समय मैंने आपको पहले बताया, दीज साउंड वेव्स केम फ्रॉम द विच मीडियम? एयर मीडियम। ये ध्यान में रखना है। अभी नाउ सच मिडल ईयर having that tympanic cavity containing 3 bones which are ultimately get connected with each other by means of a synovial joint। ये थोड़ा स्केलेटन वाला चैप्टर में, वहां पर साइनोवियल जॉइंट आप पढ़ लीजिए। ओके, नो हियर साइनोवियल जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट जिसको बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, दैट इज अ साइनोवियल जॉइंट। एंड दीज आर सपोर्टेड बाय मींस ऑफ वेरियस लिगामेंट्स। वो लिगामेंट के द्वारा सपोर्ट किया था, उनको अपनी पोजीशन पर रखा था, लेकिन लिगामेंट्स का रेफरेंस हम यहां पर नहीं लेंगे। ओके, नाउ हियर दिस 3 बोन्स, उनको ध्यान में रखना है। MIS, मिस, एंड हैज, HAS, मिस हैज। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं लेटर? M फॉर द फर्स्ट bone, which is the malleus. I for the second bone, that is the incus, and S for the third bone, that is the steps. Malleus, incus, and the steps. Now these are ultimately arranged in a series with a typical type of this shape. Here this malleus just like a hammer shape, H stand for the hammer. दूसरा है इंकस, जो उससे कनेक्टेड है, जस्ट अपीयर लाइक अ एनविल, वो चमड़े वाला काम करता है, उसके पास होता है इंस्ट्रूमेंट सामने रखकर उस पर वो ठुकाई करता है। ओके, चमार जो काम करता है, दैट इज द एनविल, उसके शेप जैसा। एंड देन द स्टेप्स विच इज जस्ट लाइक अ स्टिरअप। घोड़ी की सवारी करते समय, घोड़ी पर अगर चढ़ना है हमको, तो हम जो फुट रेस करते हैं, फुट कहां पर रखते हैं? उस स्टिरअप पर रखते हैं। ओके, गॉट इट? उसके शेप जैसा, उस पर हम चढ़कर फिर उस पर हम अपना पैर रखकर फिर घोड़े पर सवार होते हैं, तो स्टिरअप शेप जैसा। एंड नाउ दैट स्टेप्स, तो अल्टीमेटली स्टिरअप, एनविल, हैमर लाइक, HAS, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, MIS, हैमर शेप, एनविल शेप, एंड द स्टिरअप शेप, दैट मीन्स has, miss has. Okay, now such 3 bones, where the first bone, that is the malleus, having that handle, and this handle is completely connected with the that eardrum. On one end, handle of that malleus connected with the eardrum, while the head portion connected with the head of the next bone, that is the incus. उस इंकस का फिर हैंडल कनेक्ट होता है हैंडल ऑफ द स्टेप, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन, दैट मीन्स स्टेप्स। ओके, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज नथिंग बट द स्टेप्स। तो हियर अभी इन स्टेप को, ये स्टेप फिर से इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है। ओके, and here that connection of that internal ear at the small oval shaped window, which is a slight oval shaped depression, जहां पर इस स्टेप का फुटरेस कनेक्ट होगा। ओके, तो क्या है? 3 बोन है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप। स्टेप्स सबसे छोटे बोन है हमारे बॉडी के,
तो इनसे कनेक्टेड मसल्स भी सबसे स्मॉल साइज मसल हो गए बॉडी के। ओके, उसका फुट रेस किसके साथ कनेक्ट होता है? ओवल विंडो ऑफ द इंटरनल ईयर। ध्यान रखना। देख अभी ये कैसे साउंड वेव्स को ट्रांसफर करेंगे और इनको मिनी एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है? हाउ एंड व्हाई दे अल्टीमेटली इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स बाय 22 टाइम्स। अभी ध्यान रखना, इस मिडल ईयर के पहले एक्स्ट्रा ईयर में, प्रीवियस टू द मिडल ईयर, there is which medium? Air medium. Even though in a tympanic cavity of that middle ear there is an air medium, and now the instep of the middle ear get connected with the internal ear, mainly the cochlea, which is spirally coiled tube-like structure, and in that cochlea there is a liquid medium. There is a jelly-like liquid. Okay, jelly-like fluid is there. तो मीडियम चेंज होगा, एयर मीडियम से लिक्विड मीडियम या फ्लूइड मीडियम में जाएगा। तो अल्टीमेटली जब इंटेंसिटी साउंड वेव्स की एयर मीडियम में है तो ज्यादा है, क्योंकि एयर का डेंसिटी कम है। डेंसिटी बढ़ गया लिक्विड मीडियम में, तो इंटेंसिटी जो होगी साउंड वेव्स की वो भी कम हो जाएगी। ओके, तो इंटेंसिटी कम होगी तो अल्टीमेटली वाइब्रेशन भी कम होगा। अल्टीमेटली उस लिक्विड को पुश करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए। सो these three bones, malleus, incus and the steps, they increases the intensity. किस तरीके से इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी? साउंड वेव्स कहां पर आ गए? अभी टिम्पैनम पर। टिम्पैनम वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेशंस नाउ कैरिड टुवर्ड्स दी which by means of that first bone, that is the malleus, larger area, then towards the incus, larger area again, and then these are concentrated at the very small area. फोर्स को एक छोटे एरिया पर कॉन्सेंट्रेट किया गया, फोर्स को एक छोटे एरिया पर कॉन्सेंट्रेट किया गया। ओके, तो साउंड वेव्स को, वाइब्रेशन को एक छोटे एरिया पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका स्ट्रेंथ, उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। इस तरीके से लार्जर एरिया टू स्मॉल एरिया, वाइब्रेशंस आर अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट वेरी स्मॉल एरिया, and now here therefore intensity of the sound waves increases by 22 times by these 3 ear ossicles, okay, which are the bones of the middle ear. So these are called as the mini amplifiers. ध्यान में रखना है। okay, now तो अल्टीमेटली उन्होंने एम्पलीफाई कर दिया साउंड वेव्स को, और इस तरीके से साउंड वेव्स कहां पर चले गए? इंटरनल ईयर। Now actually that internal ear gets separated from the middle ear by means of a bony partition, which shows a two depressed areas. One is the oval shape जहां पर स्टेप्स डायरेक्टली अटैच हुए हैं, और दूसरा है राउंड शेप, ओके, which opens again into the tympanic cavity. दो एपर्चर्स है, दो डिप्रेशंस है। ओके, उस बोन में जो पार्टीशन है किसको किससे सेपरेट करता है? मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से सेपरेट करता है। वहां पर दो डिप्रेशन है, ओवल एंड द राउंड। उस ओवल डिप्रेशन या एपर्चर को हम बोल सकते हैं फेनेस्ट्रा ओवैलिस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओवल विंडो। जिस ओवल विंडो के थ्रू फिर वाइब्रेशंस एंट्री करेंगे इंटरनल ईयर में, ओके, और अल्टीमेटली वाइब्रेट करेंगे किसको? फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन दैट इंटरनल ईयर, वाइब्रेटिंग दैट फ्लूइड, एंड आफ्टर दैट वाइब्रेशन दीज साउंड वेव्स अगेन कम्स आउट, बाहर निकल आते हैं। ये तो वहीं पर वहीं घूमते रहेंगे और हमको एक ही वर्ड बार बार सुनाई देगा। इसलिए एंट्री करने के बाद एग्जिट भी होता है। तो एंट्री किसके के थ्रू करेंगे? फेनिस्ट्रा ओवैलिस या ओवल विंडो के थ्रू, और एग्जिट किसके थ्रू हो गए? फेनिस्ट्रा रोटुंडा, that means round window के through. Entry of the sound waves from these steps through the fenestra ovalis and exit of that sound waves through the round window. Okay, got it? इस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट। अब हम चलते हैं इंटरनल ईयर की तरफ। नाउ दैट इंटरनल ईयर इट शोज मेनली 3 पार्ट्स, 3 पार्ट। जहां पर हमको स्नेल जैसा कॉइल या मॉस्किटो कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द कॉक्लिया। उसके बाद
सोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और उसके बाद हाफ सर्कल कैनल्स दिख रही है, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनल। कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनल। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनल, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है वेस्टिबुलर apparatus। एंड देन दी कोक्लिया, तो कोक्लिया एंड दी वेस्टिबुलर apparatus ऑल टुगेदर पार्ट ऑफ द विच, दैट इज द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के पार्ट है कौन कौन? कोक्लिया एंड दी वेस्टिबुलर apparatus। ओके, उसमें से कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग पर्पज। कोक्लिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हियरिंग के लिए। और वेस्टिबुलर apparatus ये रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। क्या मेंटेन करना है? बैलेंस, इक्विलिब्रियम, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर। ओके, व्हाइल द कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, इज अ हियरिंग apparatus। ओके, अभी मैं यहां पर इसके बारे में कोक्लिया और फिर वेस्टिबुलर apparatus, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है लेबिरिंथ, ऑल टुगेदर कॉल्ड एज दी लेबिरिंथ। ध्यान में रखना है। और यहां पर मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उस एग्जांपल पर बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनल ईयर एक्चुअली। हमको जो दिख रहा है कॉइल स्ट्रक्चर, हमको जो दिख रहा है वेस्टिबुल एंड सोलन स्ट्रक्चर, हमको जो दिख रहा है सेमी सर्कुलर कैनल, ये सब बोनी स्ट्रक्चर से है। क्या है? बोनी स्ट्रक्चर से। और इन बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, ओके, इन बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं फिर मेम्ब्रेनस ट्यूब्स। ओके, तो बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर दैट लेबिरिंथ इज डिवाइडेड इनटू दी बोनी एंड देन दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ओके, गॉट इट? तो बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने डॉट पेन बता दिया। ओके, ये प्लास्टिक कवरिंग है डॉट पेन का, इसको कंपेयर कीजिए, ये बोनी स्ट्रक्चर है। इस डॉट पेन के अंदर क्या है? फिर रिफिल है। दैट रिफिल इज नथिंग बट दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या बताया मैंने? प्लास्टिक जो है कवर, इट इज नथिंग बट दी बोनी, बोनी लेबिरिंथ जो एक्सटर्नल कवर है, उसके अंदर रिफिल है। दैट रिफिल इज नथिंग बट दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो आउटर इज द बोनी लेबिरिंथ, internal is the tube is nothing but the membranous labyrinth। अभी इस बोन को या पर्टिकुलर इस एंटायर डॉट पेन को मैंने गोल गोल घुमा दिया, तो अल्टीमेटली गोल गोल घुमा दिया तो प्लास्टिक वाला पोर्शन भी गोल घूमेगा, बोनी पोर्शन भी गोल घूमेगा, और उसके अंदर वो ट्यूब जो है ना रिफिल है वो भी गोल घूमेगी। ध्यान में? तो जो एक्सटर्नल